Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me, guys. And this reading is on is a picker card reading, of course, and this is going to be on shedding some light on what is coming under sunlight in your life, as in which part of your life, which aspect of your life is coming under the blessings of our Surya Dev. तो अब इसका मतलब क्या है, ये रीडिंग का इंस्पिरेशन क्या है? अब रीडिंग का इंस्पिरेशन इज़ वेरी सिंपल. मकर संक्रांति के समय से क्या होता है कि सूर्यदेव उत्तरायण हो जाते हैं, यानी कि उत्तर दिशा की ओर चलने लगते हैं, यानी कि एवरीथिंग इज मूविंग अपवर्ड नाउ. तो दिस गाइडेंस इज intended to bring you what aspect of your life, relationship, career, money, क्या चीज़ जो भी है, क्या है जो कि अब with this astrological phenomenon is impacted, and as Surya Dev is moving upward, this aspect of your life is also moving upward. This aspect of life is also being blessed by Surya Dev. और जब सूर्य देव ब्लेस करते हैं अपनी रोशनी से, अपने वार्मथ से, अपने लाइट से हमको, तो क्या होता है, ना ही वहाँ पे ग्रोथ होता है, वहाँ पे हीलिंग आती है, बट क्लैरिटी भी आती है ना. And things become very happy tappy and abundance आता है, harvest आता है, and that is why we celebrate this harvest festivals, right? तो with this intention set, let's see कि इस उत्तरायण की जो एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट हुई है सूर्य देव के मूवमेंट से क्या रोशनी, क्या चीज ऊपर की ओर पहुंच जा रही है हमारे लाइफ में. ओके, एंड अनदर थिंग इज दैट यस, सूर्य देव इज गोइंग टू मीट हिज सन सैटर्न, शनि देव. तो इट्स मोर लाइक अ डबल वैमी. ओके, तो सैटर्न, शनिदेव भी काफ़ी खुश रहते हैं क्योंकि अपने पिताश्री से मिल रहे हैं. तो वो जो अपना थोड़ा सा प्रकोप है, किसी को सजा दे रहे होते हैं, तो वो थोड़े से हैप्पी डैपी मूड में रहते हैं, तो वो भी थोड़े लीनियंट हो जाते हैं. तो वहाँ पे भी थोड़ी ब्लेसिंग की गुंजाइश बन जाती है. तो एक डबल वैमी है. ना ही सूर्यदेव की मूवमेंट से हमारे कुछ एस्पेक्ट लाइट में आ रहा है, वार्मथ में आ रहा है, अबंडेंस में आ रहा है, हमारे सोलर प्लेक्सस एनर्जी स्ट्रांग हो रही है उस एरिया की, बट हमें शनिदेव का भी थोड़ा सा ब्लेसिंग मिल जा रहा है उसी चक्कर से. तो विद ऑल दिस इंटेंशन सेट, वी हैव 3 स्टोन टू हेल्प यू गेट दिस गाइडेंस. सो दिस इज रेड जास्पर, दिस इज सम स्टोन एंड दिस इज एक्वामरीन. तो जो भी स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज कर लीजिए. पहले हम निकालेंगे ये कार्ड्स एंड देन आई एम गोना बिल्ड दिस अप energy with more cards from other deck and tarot cards. So God's guardian angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for this picker card reading, which is going to be a quick one to help people know with this movement of Surya Dev towards Uttarayan, Uttar Disha, what aspect of their life is coming under the blessing of Surya Dev, is coming under light, is coming under warmth, is coming under growth, is coming under abundance and prosperity, is going to get harvest. Okay, so चलिए देखते हैं. Thank you for the guidance coming for this reading. Pick a card. Let's see. So I have a card for the red jasper. I'm going to keep it like this. Let's see. Let's pull the cards for it. Give me a moment. Pile number 2. Let's pick this up. This wants to come out. So this is pile number 2. Let's pull another card for pile number 3. Okay, this wants to come out. So let's take this out. ये हैं आपके cards. Let's see. Is it clear? Give me a moment. Alright guys, so here are your 3 options. Option number 1, 2 and 3. Shall we get started with the guidance? चलिए देखते हैं. Let's get started with pile number 1. Pile number 1, चलिए देखते हैं what is coming in light. Follow your dreams. तो अगर कुछ ड्रीम थी आपकी तो वहाँ पे सूर्य देव आपको एक्स्ट्रा पुश देने वाले हैं. Okay, we talked about things moving upward, right? So here we see this broomstick is pointing towards
द स्काई इज द अपर लिमिट, और वहां पे स्टार्स भी हैं. स्टार्स आर ऑल अबाउट ड्रीम्स. सो समथिंग, एक्चुअली नॉट समथिंग, ड्रीम्स, जो भी आपके ड्रीम्स थे वहां पे कुछ आपको प्रोग्रेस मिलने वाला है, ग्रोथ मिलने वाला है, आप ऊपर की तरफ बढ़ने वाले हैं, ये चीज मुझे लग रही है. ठीक है, सो फॉलो योर ड्रीम्स. ड्रीम से रिलेटेड कुछ पुश मिलने वाला है आपको विद दिस astrological movement. Now what will we do is we will take these cards and try to understand कि हो क्या रहा था. I mean anything that we get. मून का कार्ड देख रही हूँ, शायद वहां पे डार्कनेस था, क्लैरिटी नहीं थी, ठंड था, विंटर था, शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ड्रीम से रिलेटेड. बट लेट्स सी. God's guard is angels, Archangel Michael, yes. डेविल का साया था, डार्कनेस था. Something related with your dream. Maybe you were not having the strength, you were not feeling very confident, the devil was exerting its power over you, और आप action नहीं ले पा रहे थे. Yes, dreams, follow your dreams, work on your dreams. Because you will get new clarity when you work hard. And what will happen? Everything is fine. Ace of Wands. And now everything is fine is not a 10 of sword card. Okay, don't get confused. 10 of sword का कार्ड दूसरा है यहाँ पे. This is everything is fine card. This is an extra card in this deck which you have got. Okay, let me show you the card. तो आपके लिए एक स्पेशल कार्ड आ रहा है which is not प्रेजेंट इन ऑल द कार्ड्स. यानी कि आपके लिए कुछ, लेट मी फर्स्ट टेक आउट द कार्ड एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू गाइस. ओके, तो जैसे कि एक्स्ट्रा कार्ड है ना डेक में, तो हर डेक में तो एक्स्ट्रा कार्ड नहीं है होता है. नाउ दिस डेक हैज अ स्पेशल एक्स्ट्रा वन कार्ड एंड यू हैव गॉट दैट एक्स्ट्रा वन स्पेशल कार्ड जो कि उसका मीनिंग अलग है ऑल 78 कार्ड से. यानी कि देयर इज समथिंग यूनिक हैपनिंग टू यू. ओके, All right, did you see this? 10 of sword is here. 10 of sword is here. This is a different card. हालांकि एनर्जी सेम है, लेकिन आप इस 10 of sword के बाहर निकल गए हो ऑलमोस्ट, क्योंकि ये दोनों की इमेज दोनों का सेम ही है. बट यहाँ पे क्या लिखा है? 10 of sword, यानी कि आप 10 of sword की एनर्जी में हो, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है कि चीजें, थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू, एवरीथिंग इज फाइन. तो ये मैं बताने की आपको कोशिश कर रही थी. चलिए, यानी कि ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर 10 of sword है मान लेते हैं, और ये 10 of sword का दूसरा पार्ट है, तो बेसिकली आप जैसे हमने जो रीडिंग जिस इंटेंशन से सेट किया ना, तो ये फर्स्ट पाइल उस रीडिंग को बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से कैप्चर कर रहा है उसके एसेंस को. एंड नाउ व्हाई एम आई टेलिंग दैट? बिकॉज दिस कार्ड इज ऑल अबाउट सन कमिंग इन योर लाइफ, ब्लेसिंग ऑफ सूर्य देव कमिंग इन योर लाइफ. और यहाँ पे जो आप डार्क नाइट ऑफ द सोल, शायद बहुत दिन से यू आर गोइंग थ्रू दिस डार्क पीरियड, राइट? अब उस एस्पेक्ट पे रोशनी पड़ने वाली है सूर्य देव की, ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आपको सूर्य देव की. और ये जो बहुत लंबी नाइट थी आपके ड्रीम से रिलेटेड, जहां पे आप बहुत मेहनत कर रहे थे, ठीक है, वहां पे अब सूर्य की किरणें पड़ेंगी, क्योंकि रात भले ही बहुत लंबी हो गई है, लेकिन अब आप 10 of sword को क्रॉस करके अब कहां पे आ गए हो? एवरीथिंग इज फाइन वाले स्टेज पे आ गए हो. और एवरीथिंग इज फाइन का मतलब क्या है? अरुण देव जो सूर्य देव के पहले आते हैं, अपनी उषा की किरणें दिखाते हैं, एंड देन फाइनली द सूर्य देव कम्स, वो अब आने ही वाला है. जो बोलते हैं ना, पौ फटने वाला है. इट्स अबाउट टू गेट, द सन इज गोइंग टू राइज, ऑलमोस्ट अबाउट टू राइज इन योर ड्रीम वाले एरिया में, प्रोफेशनल एरिया में, जिसपे आप बहुत ज्यादा काम कर रहे थे ना, उस चीज पे. सो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, वर्किंग वेरी वेरी हार्ड ऑन योर ड्रीम. तो इस एरिया में हमने बोला कि आपकी ब्लेसिंग आएगी. एस ऑफ सोर्ड इज ऑल्सो अबाउट विक्ट्री. सो जिस चीज पे भी आपने काम किया था ना, वहां पे आपको विक्ट्री मिलने वाली है. ओके, एस ऑफ सोर्ड कार्ड इज ऑल्सो अबाउट विक्ट्री. यहाँ पे देखो सन की ब्लेसिंग्स आ रही है.
इट्स मोर लाइक कि जिस एरिया पे आपने काम किया था वहां पे सूर्य, डू यू सी दिस इज अ वेरी डिफरेंट एस ऑफ सोर्ड। यहाँ पे जो एस ऑफ सोर्ड है यहाँ पे सन भी बना हुआ है, इसमें रीथ नहीं है। ओके, यूजुअली द एस ऑफ सोर्ड हैज रीथ, रीथ इज अ विक्ट्री थिंग, इट इज नॉट देयर, बट यहाँ पे सन का इमेज है। एवरी कार्ड इज डिफरेंट। तो यहाँ पे जब हम लोग सन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लैंड है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि स्नो मेल्ट हो रहे हैं विद दिस सूर्य की गर्मी, एंड थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स समर, स्प्रिंग, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो जो भी मेहनत कर रहे थे अब उस पर क्या हो रहा है, सूर्य, इट्स लाइक यू हैव वर्कड ऑन द लैंड, आपने फील्ड में काम किया है। अब सूर्य देव आके क्या कर रहे हैं, आपके काम को सींच रहे हैं। एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी दिस डार्क नाइट जो चल रही थी काफी दिन से ना, अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सूर्य देव ये भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि यस, यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, यू हैव बीन थ्रू द डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल, और आपने बहुत मेहनत किया। अब सूर्यदेव आपके मेहनत पे शाइन कर रहे हैं। ये आपने मेहनत किया है, सूर्यदेव यहाँ पे आ गए हैं, तो सूर्यदेव किस चीज पे शाइन कर रहे हैं, आपके मेहनत पे शाइन कर रहे हैं। और वो ये भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि यस, ये बहुत लंबी रात थी बट सवेरा होने ही वाला है। देख रहे हो ना, सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइड्स, एवरी कार्ड इज वेरी डिफरेंट एंड दे स्पीक थ्रू देयर इमेजेस। यहाँ पे सूर्य की किरणें आने ही वाली हैं, पौ फटने वाला है। यहाँ पे सूर्यदेव बिल्कुल नीचे में है, लेकिन सूर्यदेव यहाँ पे कहाँ हैं, ऊपर आ गए हैं। तो बस सूर्यदेव आने ही वाले हैं, यू अंडरस्टैंड, द रोशनी इज गोइंग टू कम, तो आने ही वाला है वो चीज। अब व्हाट वी कैन डू इज लेट्स टेक वन ब्लेसिंग का कार्ड। Let's take a blessing from Surya Dev himself. Why not? Red Jasper is all about your root chakra. Root chakra is about working on your safety, security, your passion, you know, money. All right. Embrace the magical moments. Do you see the rays? सब कार्ड में रेज नहीं होते हैं। देखो, सब कार्ड में रेज नहीं है, सब कार्ड विल नॉट हैव रेज, बट यू हैव गॉट अ क्लियर रे। एंड अगेन द पेंटिकल्स यहाँ पे भी है। I mean, it looks like a pentacle, right? You already have 8 pentacles. So I think money is coming in. Money, work, dream. Embrace the magical moment. You are in a perfect energetic space for manifesting miracles. Allow your wishes to be fulfilled. Boom. Do you see this? It's the darkness before the dawn, before the sun shines on you. Money is a kind of, you know, coming in like this. Embrace the magical moment. Magical moment होने ही वाला है। तो यहाँ पे रोशनी पड़ने वाली है सूर्यदेव की आपके मनी एस्पेक्ट पे, करियर पे, ड्रीम्स पे। ब्यूटिफुल। तो एक कौन सी चीज आपको करनी चाहिए? Let's take one small step for you. One small baby step that you should call to action होता है ना, वो चीज क्या करना चाहिए आपको? Okay, let's take guidance coming for pile number 1. Thank you so very much, dear angels. And we have the card. Lay solid foundation. एक्चुअली ये आपका एडवाइस नहीं है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डन गाइज। ओके, डार्क नाइट ऑफ द सोल को आपने सस्टेन किया है। यू हैव नॉट गिवन अप ऑन योर होप, यू शोड द फेथ, यू ट्रस्टेड दैट योर हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे। तो यूनिवर्स आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि बीवर स्पिरिट आपको बता रहा है कि आपने जितना भी मेहनत किया है ना, यहाँ पे मेहनत कर रहे हो आप, और यहाँ पे भी आपने बहुत सर्वाइव किया है, यू डिडंट गिव अप। What has this helped you? This has helped you build a solid foundation. यानी कि जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो you will kill it, you will crush it. You understand? तो वो guidance है आपका. So I hope this helps you guys. Thank you so much for watching, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Bye for now. हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आपने ये वाला स्टोन चूज किया है तो चलिए देखते हैं व्हाट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज कमिंग अंडर सूर्यदेव्स वार्मथ एंड लाइट एंड ब्लेसिंग्स। मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। मेडिटेशन, तो यहाँ पे जो इमेज है, यू कैन सी दैट यू नो दिस पर्सन इज सो कामली सिटिंग अंडर द वाटर एंड ही इज मेडिटेटिंग, ही इज पीसफुल। तो
इस तरह की एनर्जी आपके लाइफ में ब्लेसिंग सूर्यदेव लगता है लेके आने वाले हैं। कामनेस है, सेरेनिटी है। तो चलो देखते हैं कि हाउ दिस एनर्जी बिल्ड्स अप, what area of your life, aspect of your life is coming under Surya Dev's blessing. Let's see. Dear angels, can we please have the guidance for all the pile number 2? What aspect of their life is coming under Surya Dev's blessing? We thank you so much for this guidance. 9 of Pentacles हमने shuffle करते वक्त भी देखा था. 8 of Pentacles, 8 of Swords and the Empress in reverse है ये. All right. क्या हो रहा है यहाँ पे? Give me a moment. All right. So, super interesting actually. यहाँ पे हम यहाँ रखते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। बैक ऑफ द डेक में देखते हैं। द हायरोफेंट इन रिवर्स है, ओके। हायरोफेंट इन रिवर्स का मतलब होता है कि maybe we were disconnected from our spiritual source. Hierophant is what? Spiritual connect, right? Higher realm से connection है, और वहाँ पे एक डिस्कनेक्ट था जब, या देयर वाज अ डेथ, देयर वाज डिस्कनेक्ट विद द स्पिरिचुअल realm, यानी कि आप, एंड जब हमारा डिवाइन से स्पिरिचुअल realm से डिस्कनेक्ट है, वहाँ पे हम कनेक्शन में नहीं है, वहाँ पे डेथ है, तो क्या होता है? Definitely we will feel so totally trapped, right? If we are into spiritual practices, sitting, meditation, doing, spiritual practice could be anything, reading spiritual books, it could be meditation, it could be a breath work, it could be doing, it could be chanting mantras, it could be chanting Harinam, japas. तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं, तो क्या है कि आप डिवाइन से कॉन्स्टेंटली टच में हैं, और जब डिवाइन से टच में रहते हैं तो आपके हमारे क्राउन चक्रास जो है क्या रहते हैं, वो कनेक्टेड विद द डिवाइन रहते हैं, और हमको रास्ता दिखता है वहाँ पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टोटली डिस्कनेक्ट मैं देख रही हूँ स्पिरिचुअल realm से, या फिर हायर आपके जो गाइड्स, हमारे ईश्वर जो हैं, तो वहाँ पे डिस्कनेक्ट होने के कारण क्या हो रहा है, हमारा मेंटल बॉडी ट्रैप फील कर रहा है, उसको रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्ट ही खत्म है यहाँ पे। बट वो चीज आपकी वापस आ रही है। डू यू सी हाउ हैप्पी यू आर? यहाँ पे हमने पिक किया कि स्पिरिचुअल कनेक्ट में क्या है, बिग डेथ है, यानी कि कनेक्शन ही नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन, नेटवर्क ही नहीं है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी ऐसी है, ऐसी एनर्जी क्यों है, आप ट्रैप्ड फील क्यों कर रहे हो अपने सिचुएशन में? क्योंकि स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं है, स्पिरिचुअल सोर्सिंग नहीं है, उसके कारण से डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, माइंड हमारा बंध गया है। दिस इज द रीजन। बट आपके लाइफ में क्या आ रहा है? सूर्यदेव आपके लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं? बैलेंस तो लेके आ ही रहे हैं, पर वो ही इज ब्रिंगिंग कामनेस, he is bringing all the spiritual practices, meditation, breath work, going out into the nature, letting go the stress। और जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस ला रहे हैं आपके लाइफ में सूर्यदेव, तो क्या होगा? इन सारी चीजों से क्या होगा? आप वापस आपका क्राउन चक्र जो सहस्रारा चक्र है, वो फिर से क्या करे होगा? एक्टिवेट होके डिवाइन से कनेक्ट होगा, और तब आपको गाइडेंस मिलेगा, एंड probably you will start doing these practices. Quite possibly आप बहुत दिन से अपनी practices नहीं कर रहे थे, छोड़ दिया था, मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे थे, लगता था कि करके भी क्या फायदा है, या फिर बहुत दिन से आप सोच रहे होंगे कि करना है पर नहीं कर पा रहे थे। बट वट एवर इट इज, सूर्यदेव with this turn of event, astrological event, things becoming more warmer, moving towards spring and all, you will get back with your practices of meditation, maybe doing whatever you work, any kind of ritual, going for a walk, going into the nature, meditate करना, breath work करना, spiritual books पढ़ना, podcast सुनना, जपा करना, whatever it is. So this is what is coming to light. Okay? और जब आप अपने spiritual energy से align हो जाएंगे, देख रहे हो कि किस तरह से align हो रहा है ये? Can you see this alignment? यहाँ पे alignment नहीं है, trapment है, but यहाँ पे सूर्यदेव ये blessing लेके आ रहे हैं, because this is the card we pulled. तो क्या होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है।
आपने बहुत अपने काम पे मेहनत किया, शायद आपको सक्सेस भी मिला, लेकिन उसके बाद आप क्या हो गए, ब्लॉक्ड हो गए, आगे ट्रैप हो गए। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना नॉलेज जो आपने गेन किया है, इतना जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, अपने आप पे मेहनत किया है, इसको मैं अप्लाई कैसे करूं। तो वो ब्लॉकेज जो थी, वो जो डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, जब आप अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करेंगे तो स्पिरिचुअल गाइडेंस के से आप आगे बढ़ेंगे और आपकी जो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, मेजर एम्प्रेस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगी। तो ये जो ब्लॉक्ड है, ये जब अलाइनमेंट होगा, आपके प्रैक्टिसेस स्टार्ट होंगे, तब ये एम्प्रेस एनर्जी जाके अनब्लॉक होगी। तो सूर्यदेव की जो मूवमेंट है ना, इस एरिया में आपकी उष्णता ला रहा है, आपका फोकस ला रहा है, आपका सोलर प्लेक्सस इंस्पायर्ड एनर्जी ला रहा है, आपकी बंद आंखें खुल रही हैं सूर्य की देव की ब्लेसिंग से, रोशनी से, गर्माहट से, वार्मथ से। और आपकी जो ये वाली एनर्जी है, जो आपने बहुत अपने आप पे मेहनत करके कुछ अपने आप को बनाया, समय आ गया कि उसको आप उसको यूटिलाइज करें, अप्लाई करें और अपने एम्प्रेस एनर्जी में आके उस चीजों का फायदा भी उठा सके। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग अप फॉर यू गाइज। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ब्लेसिंग कमिंग फॉर यू पीपल। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग इंडीड। I love how cards talk to us, how they place themselves here and there and here and there, और कैसे वो हमसे बात करते हैं। Blessings coming for pile number 2 from Surya Dev. Thank you dear Surya Dev, thank you so very much. Deepest gratitude. Open up to your spiritual gifts. Do you see this? Oh my goodness. Boom. आप अपने आप को ब्लॉक करके रखा है स्पिरिचुअल गिफ्ट से, स्पिरिचुअल कनेक्ट से। हाउ लाउड कैन दिस बी? दिस इज थंडरिंग स्पॉट ऑन। तो ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, अपने स्पिरिट, अपने गिफ्ट से कनेक्ट करिए, और यही वाला सूर्यदेव आपको अपने गिफ्ट से कनेक्ट करवा रहे हैं। This is amazing. Remember that your true nature is spiritual, not physical. The angels are sending you message to guide you on your soul's growth. Soul's का growth. Empress card is all about growth, and you are a spiritual being. Disconnected थे, इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। जब spiritually align हो जाओगे तो insights मिलेंगे, wisdom मिलेगा, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज को देख पाओगे, और अपने जो टैलेंट है उसको किस तरह से चैनलाइज करके ग्रो करना है, मैसिव ग्रो करना है, वो पता चलने वाला है। हाउ थंडरस इज दैट? ऑल राइट, वन बेबी स्टेप दैट यू कैन टेक। लेट्स सी, लेट्स फाइंड इट आउट। ओके, टाइम टू कोलैबोरेट। इट इज टाइम फॉर यू टू कोलैबोरेट। ओके, तो आप वन स्मॉल स्टेप क्या कर सकते हो, जब आंख की पट्टी खुलेगी तो मूव आउट ऑफ दिस प्लेस, एंड यू कैन नॉट कोलैबोरेट टिल यू मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। लेकिन अभी आपको लगता है कि आप कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हो, आप टाइड हो वन प्लेस पे, बट यू विल नीड टू मूव आउट। तो एक काम कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, उससे आपके बहुत ही ग्रोथ हो जाएंगे, Empress energy आएगी. Okay, so this is a beautiful reading for me at least. I enjoyed decoding the cards. And if you too liked the cards, like the guidance, please like, share and subscribe. Please press the bell icon so that you get notified every single time I upload my videos. And I will see you again in the next reading. Bye for now, guys. हेलो पाइल नंबर 3. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर गाइडेंस. सूर्य देव आपकी कौन सी एरिया में रोशनी ला रहे हैं, वार्मथ ला रहे हैं, ग्रोथ ला रहे हैं, ब्लेसिंग्स ला रहे हैं. एंड सीजनल हार्वेस्ट, हमने मकर संक्रांति की रीडिंग हम कर रहे हैं, उत्तरायण की रीडिंग कर रहे हैं, लोहड़ी की रीडिंग कर रहे हैं, पोंगल की रीडिंग कर रहे हैं, और हमारा कार्ड क्या है, हार्वेस्ट, सीजनल हार्वेस्ट. वाओ, राइट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. तो कौन सा हार्वेस्ट करने वाले हो आप, चलो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं. बट दिस इज अ ट्रूली टिपिकली, I mean, I think all the two previous 2 readings also have been wonderful. But यहाँ पे तो सीधा मकर संक्रांति, harvest festival, and you are getting the harvest. Wow, what a card to get for this reading, this pick a card theme. चलिए देखते हैं क्या कुछ आपको सूर्यदेव बताने की कोशिश करते हैं, किस तरह का हार्वेस्ट आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है. चलिए गाइडेंस लेते हैं अपने एंजल से. थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल द पाइल नंबर 3 who want to know with this turn of event of Surya Dev into Makar Rashi, moving उत्तर दिशा की ओर.
what area of their life is coming under his blessings? Thank you. Boom, this wants to come out. I cannot ignore that. All right. Can you see it? It is shining a bit, I understand, but क्या कर सकते हैं? यहाँ पे रख दूँ क्या? Okay, wait a minute, मैं यहाँ रखती हूँ. The way these two cards have shown up, it means it has some significance. तो चलो अब हम कार्ड निकालते हैं. Okay. All right. And what else do we have? 9 of Wands. What is Surya Dev getting in your life? Movement, action, ambition, passion, moving with passion. ऑल राइट. जो चीज़ काम नहीं कर रही थी वहाँ पे. पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ चीज़ को रन करने की कोशिश कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, कोई नया बिजनेस वेंचर है, स्ट्रगल कर रहे थे, पर क्या हो रहा था. देखो यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग कार्ड है. दिस इज द एनर्जी जहाँ पे सूर्यदेव रोशनी लेके आ रहे थे. आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये जो आप वेंचर रन करना चाह रहे हो, आखिर इसमें सक्सेस मिल क्यों नहीं रहा, ये आगे मूव क्यों नहीं कर रहा है. तो वहां पे देखो सूर्यदेव किस तरह का मूवमेंट लेके आ रहे हैं, जहां पे ये मूव ही नहीं हो रहा है. यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली मूवमेंट, यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड इज द फास्टेस्ट मूविंग कार्ड ऑफ टैरो. इस तरह का मूवमेंट आ रहा है आपके लिए. ओके, जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे थे ना. डू यू सी हाउ दिस वॉन्ड इज गेटिंग कनेक्टेड ब्यूटिफुली. जहां पे आपने काफी स्ट्रगल किया है, ओके, जिस एरिया में काफ़ी स्लो डाउन था, आगे नहीं बढ़ रहा था काम, बिजनेस जो भी है, प्रोजेक्ट, काफ़ी अपोजिशन थे, ऑब्स्टैकल्स था. एंड हमेशा जो ऑब्स्टैकल्स थे आपके सर पे ही सवार रहते थे. अब वही ऑब्स्टैकल्स से जो आपने गिव अप नहीं किया, फाइट किया ना, अब वही फाइटिंग जो आपने की है ना इज गोइंग टू बिकम योर ब्लेसिंग एंड यू विल रन विद इट. यहाँ पे देखो ये वॉन्ड जो है, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का क्या है, इट्स आर्म, उसका शस्त्र है वो, राइट. जबकि यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, उस शस्त्र से फाइट भी नहीं ठीक से कर पा रहे हो. लेकिन ये जो फाइटिंग आपने गिव अप नहीं की ना, ये अब वॉन्ड जो पहले वाला वॉन्ड था, ये आपका एक शस्त्र बन गया है. अब इस शस्त्र के साथ आप आगे बढ़ोगे. तो मूवमेंट ला रहे हैं सूर्यदेव आपके लाइफ में. व्हाट एल्स इज ही गेटिंग. यस, काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन था किसी चीज़ से, बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे. ओके, एंड डिससेटिस्फाइड टू एन एक्सटेंट जहाँ पे यू एक्चुअली मूव्ड आउट ऑफ दैट ऑल्सो, है ना. हैप्पी, नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड. तो फाइनली क्या किया आपने वहाँ से अपना बैग पैक करके वहाँ से आप चले गए, क्योंकि यू आर नॉट हैप्पी वेयर एवर यू आर. इट वॉज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिकॉज ऑफ पीपल मोस्टली. Three of Cups in reverse, lot of opposition, lot of maybe negative people, maybe toxic people trying to take your power, sending you all those low vibrational energy towards you. देख रहे हो किस तरह से low vibrational energy आपके तरफ आ रही है, directed towards you. Constant struggle. तो वहाँ पे एक फास्ट मूवमेंट आ रहा है, मुझे लग रहा है. लाइक जहाँ पे यू नो मोर लाइक जहाँ पे शायद आप अपने लिए फाइट नहीं कर पाते थे, और शायद यू नो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी नेगेटिव लोग हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो इट्स मोर लाइक दे यूज टू पुश यू इन द कॉर्नर एंड दे यूज टू सेलिब्रेट यू. दे यूज टू सेलिब्रेट यू फॉलिंग डाउन एंड यू नॉट यू नो थिंग्स. आपकी चीज़ें जब स्लो होती थी या वर्कआउट नहीं करती थी, तो दे यूज टू एंजॉय ऑल दैट. ओके, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग एंड फाइटिंग. बट और आप उनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दे हैड अ अपर हैंड, योर अपोजिशन, दीज नेगेटिव पीपल हैड अ अपर हैंड ओवर यू. लेकिन क्योंकि बट यू नेवर गिव अप फाइटिंग देम, यू ऑलवेज स्टूड योर ग्राउंड. बट अब मुझे लग रहा है कि आप में और भी अब पहले तो आप फाइट करते थे, बट बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि ये बहुत सारे लोग भी थे, आप भी न्यू थे किसी चीज़ में, यू हैड नो आइडिया हाउ टू डू थिंग्स एंड ऑल, एंड दीज नेगेटिव पीपल आप पे चढ़ के बैठ जाते थे.
यहाँ पे बहुत अपोजिशन भी देख रही हूँ. यू आर स्ट्रगलिंग बट यू नेवर गिव अप. बट अब मुझे लग रहा है कि आप में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाला, वो पैशन, वो मूवमेंट, कि यू आर getting back to them. You're not running away from them. You are going to give answers to them. You will stand your ground. This card is about what? Stand your ground. तो पहले जहाँ पे आप उनसे डर के भाग जाते थे या फिर उनको you were scared of facing them, but now you will be so filled with confidence that you will not be scared of them. You will go back to them if the need be, of course, because not every battle is worth fighting. Do remember that. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी लो वाइब्रेशन के साथ लो वाइब्रेशन हो जाओ और अपना वैल्यूबल टाइम वेस्ट करें. बट नेवर द लेस, इट्स लाइक यू आर गेनिंग मोर कॉन्फिडेंस टू रीच आउट टू देम एंड कॉल देम आउट. You will not be scared of running away from them. You will be exuding a lot of confidence. तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं आप में. एक सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी जो होती है वो मैं फील कर रही हूँ. येलो कार्ड, येलो मून. सी दिस येलो कार्ड. तो आपका सोलर प्लेक्सस जो बोलता है ना कि it is your masculine energy. So you will feel safe to be powerful. You will be bold and you will be aggressive. You will be like, on the offensive. Offense is the best defense, by the way, Major Arya says. But anyways, यहाँ पे ये चीज़ है. ओके, ऑल राइट, चलिए देखते हैं. मुझे तो यही लग रहा है कि आप में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है और आप लोगों को फेस कर रहे हो, अपोजिशन को फेस कर रहे हो. यू आर कॉलिंग आउट दीज नेगेटिव पीपल. वो उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है. ब्लेसिंग कमिंग फॉर यू. लेट्स सी. यू आर रेडी फॉर मोर. Your career is growing, blossoming. Now is the time to make the changes you have been contemplating. Changes. Knight of Wands is the fastest moving card of the tarot. और वो fast move करता है. You need to move fast with the changes. So more is to come. Get on your horse seat. Life is going to change. It is going to be very busy. There are a lot of things to be done. तो वो सारी चीज़ें आपके लिए सूर्यदेव आपके लाइफ में मूवमेंट लेके आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं. तो आपको कॉन्फिडेंस, मूवमेंट, एनर्जी, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी. तो पैशन लेके आ रहे हैं वो सब चीज़ें. सो व्हाट वन स्मॉल थिंग यू कैन डू. लेट्स सी. पाइल नंबर 3. Okay, whatever card fell down, it really wants to come out for you. We have 2 cards, so let's take both the cards. Nothing is wasted, exactly. और ये embrace in between. Anyways, nothing is wasted. Yes, कुछ चीज़ आपको, some things were uncomfortable, not happy. You had to leave that and you had to maybe start something else. But know कि you were, your life's journey is perfectly planned. आप जहाँ पे भी हो, आप perfectly वहाँ पे जगह के लिए ठीक हो. Vulture spirit, nothing is wasted. अगर यहाँ पे भी आप थे, आपको लगा time waste हुआ है, and finally you got nothing, you had to move. Remember, everything is teaching you, therefore nothing is wasted. और आज जो आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग वॉन्ड है ना, आपका जो सुरक्षा चक्र है, आपका जो वेपन है, आपका जो शस्त्र है, ये सारी चीज़ों ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है. ठीक है, तो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू गाइज. डू लेट मी नो इफ इट हेल्प्स यू, डजंट हेल्प यू. दिस इज व्हाट ब्लेसिंग सूर्यदेव इज ब्रिंगिंग योर वे विथ हिज टर्न ऑफ with his entry into Makar Sankranti, of course. And if you like the guidance, please like, share and subscribe the video, guys. And please don't forget to press that bell icon so that you get notified every single time I upload the video. I will see you again. Take care and bye for now.